Hello students, very good morning to all of you, and I hope that you all are in good health and taking great care of yourself. As you know that we have completed chapter number 9, the perfect tenses, from your grammar book, that is Adventures with Grammar and Composition, and we have also discussed that chapter in the live class. So today we would be moving ahead with our next chapter, that is active and passive voice. So I hope that you have already studied previously what is voice, right? Voice is the form of verb which decides whether the doer of the action is in the beginning of the statement or the receiver of the action is in the beginning of the statement. Depending on that, you decide whether your sentence or whether your verb is in active voice or passive voice. So let's see that. Post is making full use of his underwater binoculars. GT is not impressed. See, I can look at small things at the distance. Maybe the small things don't want to be looked at, Post. Ooh, I see a big blue wall over there. Well, you are being seen by the blue whale too. See, so there are two forms of sentences over here. You can just notice it. I can look. Then they don't want to be looked at. I see a big blue whale. And one more thing over here, you are being seen, right? So there are different form of sentences along with the different form of tense. So we would be studying those things in this chapter. So let's start our chapter with the definition of active and passive voice. A sentence with a transitive verb, that is a verb with an object, can be written in two voices. So that is the most important thing you need to remember, students, कि जो sentence में transitive verb होता है, मतलब जिस verb के पीछे object follow होता है वो वाला, not the intransitive one, okay? तो जिस sentence में ऑब्जेक्ट है मतलब ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसको हम दो वॉइस में लिख सकते हैं. वन इज एक्टिव एंड अनदर वन इज पैसिव. नाउ पोस्ट इज लुकिंग एट द व्हेल. नाउ ओवर हियर इफ यू सी द स्टूडेंट्स, पोस्ट इज लुकिंग एट द व्हेल. इज लुकिंग, right? That is your verb. Who is looking? Post. That means post can be considered as performer of the action which is in the place of subject, right? या फिर doer of the action आप कह सकते हो, है ना? post जो है वो हमारा है doer of the action क्योंकि वो हमारा action carry out कर रहा है. It is in the place of subject, or you can say it is the subject of the sentence. And what is it looking at? At the whale. So whale would be our object. That means receiver of the action. Okay. Now if you see the second sentence, the whale is being looked at by post. Now in this sentence if you see the beginning, मतलब जो जहाँ पर पहले subject था वहाँ पे हमारा आ गया है object, है ना? रिसीवर ऑफ द एक्शन जो है वो पहले ले लिया है हमने, और हमारा जो डूअर ऑफ द एक्शन था पोस्ट उसको हमने पीछे ले रखा है, और हमारा जो वर्ब है उसका भी फॉर्म चेंज हो गया है, राइट? सो सबसे पहले ये याद रखना है जिसके अंदर सब्जेक्ट पहले आता है और ऑब्जेक्ट बाद में आता है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी योर एक्टिव वॉइस. ओके. And when you change the position of the subject and object in the sentence, and you also make the changes in the verb according to the tenses, then it is called passive voice. So we'll see that, which is given behind. In the second sentence, the subject is the receiver of the action being performed. Right? मतलब subject की place किसने ले ली है अभी? receiver of the action ने, है ना? जैसे कि the whale is the subject और action क्या है? is being looked. तो वो हो जाता है हमारा passive voice. In other words, when the subject is the doer of action, the sentence is said to be active voice.
and when the subject is the receiver of the action then it is said to be the passive voice. So ये आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि सेंटेंस के बिगिनिंग में मतलब सब्जेक्ट की जो पोजीशन है उस पर आपका डूअर ऑफ द एक्शन है या रिसीवर ऑफ द एक्शन है. अगर डूअर ऑफ द एक्शन है देन इट इज़ एक्टिव वॉइस, और अगर रिसीवर ऑफ द एक्शन है तो है पैसिव वॉइस. ओके. In active voice we talk about the doer of the action, while in the passive voice we talk about the receiver of the action. ठीक है. एक्टिव वॉइस में हम किसके बारे में बात करेंगे? वी आर टॉकिंग अबाउट द डूअर, मतलब जो एक्शन कर रहा है वो. और पैसिव वॉइस में हम बात करेंगे रिसीवर की बारे में, जो रिसीव कर रहा है वो. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर गांगुली हैज़ बॉट अ सोलर कुकर. राइट. सो यहाँ पे किसने खरीदा है कुकर? इट इज़ बीइंग बॉट बाय मिस्टर गांगुली. राइट. सो ये एक्शन है जो बॉट, वो किसने की है? मिस्टर गांगुली ने. सो दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी आवर एक्टिव वॉइस बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मिस्टर गांगुली हु इज़ द सब्जेक्ट एंड ऑल्सो द डूअर ऑफ द एक्शन. और ये जो सेकेंड सेंटेंस है, अ सोलर कुकर हैज़ बीन बॉट बाय मिस्टर गांगुली. सो यहाँ पे हमारा जो रिसीवर ऑफ द एक्शन है द सोलर कुकर, इट इज़ इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट. जो रिसीवर है वो सब्जेक्ट की जगह पर है. राइट. तो ये हो जाता है हमारा पैसिव वॉइस. we use active voice when we talk to when we want to talk about the doer of the action. ये तो हमने जैसे पढ़ा अभी यहाँ पे नोट में, this one. We use passive when we want to talk about the thing or the receiver of the action, and passive voice is preferred to instructions and impersonal and formal context. Okay, passive voice हम normally use करते हैं instructions में या फिर formal context में बात करते हैं तब. And also we use passive voice when we are obvious about who is the subject. मतलब जब हमको मालूम है कि subject कौन है, ठीक है, कौन हो सकता है, तब अगर हमें सब्जेक्ट नहीं दिखाना है तो हम पैसिव वॉइस यूज़ कर सकते हैं. या फिर जब हमको मालूम ही नहीं है कि एक्शन किसने की है, एट दैट टाइम ऑल्सो वी आर गोइंग टू यूज़ पैसिव वॉइस. एंड व्हेन द डूअर ऑफ द एक्शन इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. मतलब जैसे मान लो कि द लॉ वॉज पास्ड. ठीक है, द लॉ वॉज पास्ड. अभी ये लॉ जो है वो किसी ने तो बनाया होगा, है ना, जजेस है या फिर लॉयर्स है, उन्होंने बनाया होगा, बट वी डोंट नीड टू नो अबाउट दैट. लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि लॉ पास हो गया है, तो वहाँ पे हम पैसिव वॉइस यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें सब्जेक्ट को दिखाने की ज़रूरत नहीं है या फिर सब्जेक्ट का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है वहाँ पे, इसलिए. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, यू नीड टू रिमेंबर एक्टिव और पैसिव वॉइस का डिफरेंस, एंड we'll just see the format of active passive. So let's see that first. When your sentence is in active voice, normally it is subject plus verb plus object. Okay, but when you change it into passive voice, we need to remember that we bring the receiver first. मतलब जो object होगा sentence का वो पहले आ जाएगा. Right, it will be coming in the place of subject. Okay, ये याद रखना है. ये सिर्फ आपको बताने के लिए मैं बोल रही हूँ कि जो हमारा रिसीवर है वो पहले आ जाता है, इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है. उसके बाद आता है हमारा बी वर्ब डिपेंडिंग ऑन द टेंस. ये टेंस पे डिपेंड करता है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे. उसके बाद हम लिखते हैं वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल. उसके बाद एडिशन होता है बाई का, एंड देन वी ऐड द डूअर ऑफ द एक्शन, मतलब सब्जेक्ट जो है वो. ठीक है, तो ये है हमारा पैसिव वॉइस का फॉर्मेट. आप जब भी कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस में टर्न करते हो, वेन एवर यू टर्न योर सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस फ्रॉम एक्टिव, राइट, एट दैट टाइम योर मेन वर्ब शुड बी इन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. मतलब V3 का जो फॉर्म होता है वो ही आएगा, और उसके साथ जो बी वाला वर्ब है वो डिपेंड करता है आपके टेंस के ऊपर और आपके सब्जेक्ट के ऊपर. ठीक है, मतलब सब्जेक्ट की जगह पर मान लो रिसीवर आ जाता है तो वो रिसीवर के ऊपर कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है और कौन सा टेंस है, वेदर इट इज़ प्रेजेंट,
पास्ट और फ्यूचर एंड वेदर इट इज़ सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट. ठीक है, उसके बेसिस पर डिवीजन होते हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे. First we will learn how to form passive voice. So let's see that in your book. While forming the passive voice, we change the places of subject and object. जैसे कि मैंने आपको बताया, meaning the object becomes the subject, and we add the appropriate form of the verb be to the sentence and use the past participle of the verb, and then it is followed by do and the doer of the action. जैसे कि मैंने अभी आपको फॉर्मेट समझाया, सेम वही फॉर्मेट होता है. जैसे कि यहाँ पे ये सेंटेंस है, सारा ड्रॉज अ पिक्चर. नाउ ड्रॉ इज अवर वर्ब, राइट, ड्रॉ करना. हु इज़ ड्रॉइंग? सारा. सो दैट इज़ अवर डूअर एंड पिक्चर इज़ रिसीवर. सो जब हम उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो रिसीवर पहले आ जाएगा. अ पिक्चर इज़ ड्रॉन बाय सारा. सो ये इज़ ड्रॉन, ड्रॉज का इज़ ड्रॉन हो गया, राइट. वो चेंजेस आपको बाद में पता चलेंगे. वी वुड बी स्टडिंग दैट आफ्टरवर्ड्स, बट येस, दिस इज हाउ द चेंजेस टेक्स प्लेस. रोहित इज ड्रिंकिंग ज्यूस. तो अभी ज्यूस जो है वो आ जाएगा पहले. इज ड्रिंकिंग का हो गया है इज बीइंग ड्रंक बाय एंड रोहित. नाउ इफ़ यू नोटिस स्टूडेंट्स दैट अवर वर्ब कोई भी फॉर्म में हो, आईएनजी फॉर्म में हो या प्रेजेंट फॉर्म में हो या फिर पास्ट में हो, लेकिन हमारा पैसिव वॉइस का जो वर्ब होता है वो हमेशा V3 ही होता है. सी दिस एंड दिस, दोनों टेंसेस अलग है लेकिन जो हमारा वर्ब है वो पास्ट पार्टिसिपल बन गया है. पोस्ट इज टीजिंग रे. रे इज बीइंग टीज्ड बाय पोस्ट. ओके, रे इज चेजिंग पोस्ट. पोस्ट is being chased by Ray. Okay, so there are the changes according to the tenses which we would be studying on page number 99. Okay, we would be studying there, so don't worry. I know अभी आपको पता नहीं चल रहा है, but we would be able to understand once we are done with the rest of the thing. ठीक है. So now let's see the exercise A, which is given over here. Are the subjects in the following sentences doer or receiver of the action, and choose the correct option to complete the sentences. You need to find out कि sentence में जो subject की जगह पर है वो receiver है या doer है, right? और अकॉर्डिंगली आपको आपका वर्ब प्लेस करना है. आपको इतना याद रखना है कि अगर आपका पैसिव वॉइस होगा तो उसमें बी का फॉर्म होगा वर्ब का और पास्ट पार्टिसिपल होगा वर्ब का. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. बी वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल. अगर पैसिव है तो ये वाला फॉर्म यूज़ करेंगे, और अगर वो नहीं है तो टेंस के हिसाब से जो भी सेट होता है वो यूज़ करेंगे. Blue whales dash in all the oceans of the world. Now blue whales मिलती है. Found means मिलना. Now who is finding it? We don't know. लेकिन ये blue whales क्या हो गया यहाँ पे? हमारा रिसीवर हो गया है ना, या फिर आप कह सकते हो ऑब्जेक्ट हो गया. तो उसके साथ हमें वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल और बी वाला फॉर्म यूज़ करना है, तो वो हम यूज़ करेंगे आर फाउंड. ब्लू व्हेल्स आर फाउंड इन ऑल द ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड. नाउ द नेक्स्ट थिंग, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर डैश इन 1961. फाउंडेड और वॉज फाउंडेड, राइट? सो हु फाउंडेड? व्हाट डू यू थिंक? So here the institute, you can say the organization Worldwide Fund, was it founded or was founded? Now who is the founder of this organization? Well, we don't know about that. So this is actually the receiver of the sentence. So हमारा आंसर होगा was founded.
क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है पैसिव वॉइस, और ये सेंटेंस जो है वो है हमारा पैसिव वॉइस में। थर्ड वन, सयानी डैश हर वर्क इन एन आवर, विल फिनिश और विल बी फिनिश्ड बाय। नाउ सयानी, शी इज़ गोइंग टू फिनिश, मतलब वो है हमारा सब्जेक्ट, और यू कैन से द डूअर ऑफ द एक्शन। तो उसके साथ हम नॉर्मल वाला फ्यूचर टेंस यूज़ करेंगे जो है विल फिनिश। Sayani will finish her homework in an hour. So this sentence is in active voice. The next one, someone dash my papers from this table. Now someone has moved या has been moved, मतलब किसी ने मूव किए है, that means someone is the doer of the action. तो ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस, और इस हिसाब से हम यूज़ करेंगे हमारा वर्ब जो है हैज़ मूव्ड। ओके, फिफ्थ वन, मोर एंड मोर ट्रीज डैश ह्यूमन्स टू मेक रूम फॉर देमसेल्व्स। सो मोर एंड मोर ट्रीज आर कटिंग या आर बीइंग कट बाय ह्यूमन्स टू मेक रूम फॉर देमसेल्व। सो योर ट्रीज को कट कौन कर रहा है? ह्यूमन्स कर रहा है। सो ट्रीज आर द रिसीवर ऑफ द सेंटेंस, receiver of the action, and it is placed in the position of subject. So this is our passive voice, and we are going to use this one. More and more trees are being cut by humans to make room for themselves. Okay, so you just need to look for the doer or the receiver of the action which is in the position of subject. ठीक है, उसके बेसिस पर आप डिसाइड करोगे कि आपका सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। ओके, नाउ लेट्स सी द चेंजिंग ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं वो एक्टिव वॉइस में अगर सब्जेक्ट की जगह पर है, तो अगर वो ऑब्जेक्ट की जगह पर आएंगे तो चेंज हो जाएंगे, और वैसे ही अगर वो ऑब्जेक्ट की जगह पर है तो व्हेन इट कम्स ऑन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट इट चेंजेस। ओके, सो व्हेन द वॉइस इज चेंज द पर्सनल प्रोनाउन एक्टिंग एज ऑब्जेक्ट टर्न्स इनटू सब्जेक्ट। Subjects are either deleted or they are placed after by. ठीक है, so let's see the personal pronoun I. When you are writing active voice, if you write I read the books, so students here I is our subject in the place of subject. ठीक है, तो अभी जब हम उसको चेंज करेंगे तो ये जो I है वो पीछे चला जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पर, है ना, क्योंकि जो बुक्स है इट वुड बी कमिंग इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। द बुक्स वर रेड बाय मी, सो यहाँ आई का बन गया मी। ठीक है, वैसे ही यू प्ले चेस, चेस इज प्लेड बाय यू, दैट डजंट चेंज, वो चेंज नहीं होगा, यू जैसे है वैसे ही रहेगा। वी एट डिनर, so we is the subject in the sentence. When we make it into passive voice, we replace it and take it in the place of object. So the dinner was eaten by us. She saw a yeti. A yeti was seen by her. So she is the subject और her बन जाता है object. ठीक है, he sang a song. He is the subject over here in this sentence. और जब हम उसको चेंज करेंगे तो अ सॉन्ग वॉज संग बाय हिम, सो हिम हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट की जगह पर। इट बिट माई हैंड, इट इज़ द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, लेकिन वो पैसिव वॉइस में भी वही रह जाता है, सेम इट ही रहता है। माई हैंड वॉज बिटन बाय इट। दे लर्नड द लैंग्वेज, सो हियर स्टूडेंट्स दे is the subject of the sentence, and when you change its place and put it in the place of object तो हम लिखेंगे the language was learned by them. Okay, so you need to remember one thing कि when we are changing the sentence from active to passive, the pronouns which are in the place of subject changes its form when it becomes an object of the sentence. जैसे कि I बन जाता है me, ठीक है, फिर we बन जाता है us, ये हमारा फर्स्ट पर्सन हो गया,
उसके बाद she becomes her, he becomes him, and they becomes them. ठीक है, और वैसे ही you और it जो है वो दोनों सेम रहता है, it doesn't change. Okay, so these are the changes in the personal pronoun which you need to remember. So students, let's see the sentence over here. Rahul called me. So here Rahul is the doer of the action and me is the receiver of the action, that means object. Now when I change this sentence into passive voice, me जो है object की जगह पर, वो जब subject की जगह पर आ जाएगा तो हम लिखेंगे I. Right, I was called by Rahul. सो यू नीड टू रिमेंबर, जैसे आई सब्जेक्ट की जगह पर है तो वो मी बन जाता है, तो जब वही मी अगर पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह पर जाएगा तो वो आई बन जाएगा. एंड दैट रूल गोज़ फॉर ऑल अदर पर्सनल प्रोनाउंस टू. सो रिमेंबर दैट. ओके, नाउ when the sentence has two objects, what we need to do at that time? So let's see that. When a sentence has two objects, one is direct and another is indirect, we change the active voice to passive as given below. John gave Helen a book. Now your students, you need to remember when you get the answer for what, जब आपको क्वेश्चन मतलब जो एक्शन है उसके रिलेटेड जब आपको आंसर वॉट का मिलता है तो वो होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और किसको दिया मतलब टू होम, राइट, एक्शन जो है उसके रिलेटेड अगर आपको होम का आंसर मिलता है तो वो हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो नॉर्मली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वुड बी अ ह्यूमन बीइंग एंड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वुड बी अ थिंग, यू कैन से अ नॉन लिविंग थिंग. जैसे कि जॉन गेव हेलन अ बुक. व्हाट डिड जॉन गेव? अ बुक. एंड होम? हेलन. तो ये जो बुक है वो है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और हेलन हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, एंड व्हेन यू कन्वर्ट इट यू कैन चेंज इट इन बोथ द वेज. पहले अगर आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लेना है, ठीक है, मतलब ये जो है हेलन उसको आपको पहले लेना है. व्हेन यू यूज़ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एज द न्यू सब्जेक्ट तो हम क्या लिखेंगे? हेलन वॉज गिवन अ बुक बाय जॉन. ठीक है, जॉन तो हमारा सब्जेक्ट है ही तो वो अपनी जगह पर ही रहेगा और बुक का जो लिखा हुआ है वो तो लिखना ही पड़ेगा. सो हेलन वॉज गिवन अ बुक बाय जॉन. ओके, एंड व्हेन वी यूज़ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एज अ न्यू सब्जेक्ट तो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? बुक है. सो बुक वॉज गिवन टू हेलन बाय जॉन. सो यू कैन मेक एक्टिव टू पैसिव इन बोथ द वेज, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ करके भी और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी. ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस में अगर दो ऑब्जेक्ट्स है तो आपको फाइंड आउट कर लेना है, और अगर नहीं भी करोगे तो भी ठीक है, लेकिन आपको जब प्लेस करो तब याद रखना कि दोनों में से एक भी ऑब्जेक्ट छूटना नहीं चाहिए. इफ़ यू आर टेकिंग वन ऑब्जेक्ट इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट देन डोंट फॉरगेट टू यूज़ द अनदर वन इन द सेंटेंस. ओके, however when verb carries two objects we usually use the person as new subject. ठीक है, जो पर्सन होता है उसको हम सब्जेक्ट की प्लेस पर यूज़ कर सकते हैं ज़्यादातर. फॉर एग्जाम्पल, मैरी गेव जॉन अ वॉच. सो मैरी ने वॉच दी है, राइट. इसके अंदर मैरी ने क्या दिया है? वॉच दिया हुआ है. एंड व्हेन यू चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस वी हैव रिटर्न जॉन फर्स्ट, राइट. हमारे पास दो है इसके अंदर ऑब्जेक्ट, जॉन है जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और वॉच है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. मैरी ने क्या दिया? वॉच. किसको दिया? जॉन को. तो जब हम पैसिव कर रहे हैं तो हमने पहले जॉन लिया है. सो जॉन वॉज गिवन अ वॉच बाय मैरी. ओके, so students, I hope that you are clear till here. So please do exercise B by yourself. I would be sending the answer of that, or we would be checking the answers in the next class, in the next video. Till then, take care.